حضور آ گئے دنیا میں. اب حضور کی سیرت سن لو آپ. ولادت تک کے حالات حضرت مولانا مفتی عمران صاحب نے بہت اچھے طریقے سے آپ کو بتائے. اب اس سے آگے سے میں سنانا شروع کر دوں. بھیا اس کی بیس بالکل بند کر دو اگر کھلی ہو تو. ٹریول بڑھا تو تھوڑی سی آواز اور بڑھا دو لیکن کوئی کو مت بڑھانا. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا سرکار دنیا میں تشریف لے آئے. جب حضور تشریف لے کر آئے مکے کے وہ حالات کہ اگر لڑکیاں پیدا ہو جاتی تھیں تو مکے کے ظالم و جابر لوگ اسی وقت میں ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے، مار ڈالتے تھے. سرکار جب 12 تاریخ کو دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو علاقے میں اطراف و جوانی مکہ شریف کے پہلے کا دور یہ تھا کہ امیروں کے بچوں کو غریب لوگ پرورش کے لیے لے جاتے تھے کہ ہم بچوں کو پال لیں گے اور جب مدت پوری ہو جائے گی تو ان لوگوں کے گھروں سے اس کے عوض بے شمار نذرانہ ملے گا. گھر کے خرچ وغیرہ جو ضروریات ہیں وہ آسانی سے پوری ہو جائیں گی. اسی طور و طریقے پر مکہ شریف کے اڑوس پڑوس کی کچھ دائیاں مکہ شریف میں آنے لگی. جس سال حضور دنیا میں تشریف لائے اس سال مکے کے اندر لڑکوں کی پیدائش ہوئی. سبحان اللہ. کس کی پیدائش ہوئی؟ لڑکوں کی. تو مکے کے قریب کی جو دائیاں تھیں وہ آنے لگی تو راستے میں حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگتی حلیمہ تو تو بہت غریب ہے، تو بھی چلی چل. مکے میں مالداروں کے یہاں بیٹوں نے جنم لیا ہے، تو بھی کسی کے ایک بیٹے کو لے آنا. جب مدت مکمل ہوگی تو نذرانہ ملے گا، گھر کی غربت دور ہو جائے گی. حلیمہ عرض کرتی ہیں نہیں میرے پاس سواری کا کوئی خاص بندوبست نہیں ہے، کمزور سواری ہے. کہاں تو قافلے کے ساتھ چلی چل، آہستہ آہستہ چلنا، جب تو چلے گی تو کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا. تو حلیمہ کی وہی کمزور لاغر اونٹنی جس پر سوار ہو کر حلیمہ چلی. سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہو چکے ہیں. اب یہ دائیاں جیسے ہی مکے میں انٹری کرتی ہیں کسی نے کسی امیر کے بیٹے کو لیا، کسی نے کسی امیر کے بیٹے کو لیا، کسی نے کسی امیر کے بیٹے کو لیا. تمام لوگ مدائیوں نے اپنے اپنے حصے کے تمام بچوں کو لے لیا. اب تاخیر سے حلیمہ جب پہنچی تو کہنے لگتی ہے ساتھ والی دائیاں کہ حلیمہ اب تو ہم بچوں کو امیروں کے لے چکے ہیں، خالی لوٹنے سے بہتر ہے اس مکے کے اندر ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جس بچے کے باپ کا سایہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے خدا نے اٹھا لیا ہے. چلی جاؤ تم اس کو لے لو، زیادہ نہیں کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا، آنے کی محنت وصول ہو جائے گی. حلیمہ سعدیہ نے دل میں سوچا چلو اس کو لے لیتے ہیں. لیکن یہاں پر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں مکے کے اندر جو اور دائیاں آئی تھیں ان دائیوں نے حضور کو پسند نہیں کیا، حضور کو قبول اس وجہ سے نہیں کیا کہ حضور کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا. میں کہتا ہوں نہیں بھائی کیا بول رہے ہیں آپ،
कौन से नशे में गर्क हैं आप जब ये इतना बड़ा जुमला बोल रहे हैं? बल्कि हकीकत ये है कि सरकार ने उन तमाम दाइयों को कबूल नहीं किया था, इसलिए कि अगर हुजूर पसंद फरमा ले तो हुजूर की पसंद को तो खुदा भी नहीं डालता है। अब अल्लाह का हबीब अपने घर में लेटा हुआ है। हलीमा सादिया ने जब दिल में सोच लिया चलो ले लेते हैं, हलीमा दरवाजे पर दस्तक दिया। कौन हलीमा? तमाम अपने बारे में अपना तारुफ कराया। उसके बाद में बातचीत होने के बाद अहदो पैमान हो गया। आमिना खातून कहती है हलीमा ये याद रखना इनके सर से इनके बाप का साया पैदा होने से पहले उठ चुका है, ये याद रखना। लेकिन हलीमा ये भी याद रखना ये इनाम तो तुझे इतना दिया जाएगा कि तेरे वहमो गुमान में भी इतना नहीं होगा, याद रख लेना हलीमा। अब हलीमा अंदर दाखिले के बाद जब तमाम बातें मुकम्मल हो गई तो हलीमा सादिया अर्ज करने लगती है ऐसा है सैयदा आमिना जरा वो बच्चा भी तो दिखा दो जिस बच्चे को लेने के लिए मैं हाजिर हुई हूँ, जिसके लिए ये तमाम तक बातें आप बता रही है। उस बच्चे के चेहरे का दीदार भी करा दिया जाए। अब हलीमा सादिया के जब इशारा पर सैयदा आमिना इरशाद फरमाती है हलीमा ये देखो सामने बच्चा लेटा हुआ है जिसके ऊपर हरे कलर का कपड़ा पड़ा हुआ है, जरा इसके सर से कपड़ा हटा कर देखो तो सही। अब हलीमा सादिया आगे बढ़ी और पहुंचाने के बाद जैसे ही मुस्तफा जाने रहमत के रुखने नबुव्वत से उन्होंने कपड़े को हटाया तो हलीमा सादिया का बयान था कि जैसे ही पैगंबर के रुखने नाज से मैंने कपड़े को हटाया था तो मैंने देखा अचानक सरकार पिछला कपड़े के नीचे जैसे ही हटाना था मुस्तफा के चेहरे पर तबस्सुम आया, सरकार के लम्हाए नाज पर मुस्कुराहट खेलने लगी। तो हलीमा का बयान था कि मैंने उसी मुस्कुराहट से एक नूर निकलते देखा जो नूर आसमान की तरफ चला गया तो पूरे आसमान में रोशनी पैदा हो गई। हसनैन मंजरी साहिब किबला सरजमीन परेबा सादात मुसलमाने अहले सुन्नत हलीमा सादिया ने हुजूर को देखा मुस्कुराने लगी। अब बच्चा कोई नया हो और उसे भाईजान हम लेटे हुए हैं, मुस्कुराने का तबस्सुम फरमाने का अंदाज, हलीमा फिदा हो गई। कभी चेहरा देखती हैं, कभी लब देखती हैं, कभी कान देखती हैं, कभी कुछ देखते देखते अपने शोर से कहती हैं नहीं सरताज मुझे तो ऐसा लगता है किसी माँ ने आज तक इतना हसीन बच्चा जना ही कब होगा। लाजवाब बच्चा है ये। प्यार से सीने से लगाया, पिस्तान पेश किया, एक को कबूल किया, लेके चल दी। जैसे ही चलना था हलीमा सादिया वही कमजोर ऊँटनी जो आते हुए रास्ते में कई मर्तबा बैठ गई थी, मगर अब हुजूर को गोद में लेकर के ऊँटनी पे सवार हुई। वही कमजोर ऊँटनी फरवा को ऊँटनियों की तरह सबसे आगे आगे दौड़ती चल रही है। जब दौड़ा चलती रही वो ऊँटनी तो जो आपके साथ वाली दाइयां थी ना वो आपसे आगे निकल चुकी थी। अब हलीमा ने जब उनको करीब पाया और उसके बाद में हलीमा ने उनको पीछे किया, आगे निकली तो तमाम दाइयां कहने लगती हलीमा क्या सवारी बदल दी है, ऊँटनी बदल दी है। तब हलीमा सादिया ने कहा नहीं नहीं सवारी वही है, अलबत्ता सवार बदल गया है। किसी और की बरकतें नहीं, यही बरकत वाले बच्चे की बरकतें हैं। अब मैं नहीं, अब तो ये सवार बदल गया। अब हलीमा अपने मकान पे चली गई और जैसे ही अपने मकान में गई अब उस मकान में रहती रही। अब बरकतें उस घर का तवाफ कर रही है और बरकतें उस घर में नाजिल हो रही है। और बरकतों का आलम ये है हलीमा की जो बकरियां पहले दूध देना बंद कर चुकी थी, अब मुस्तफा के कदम रखे हैं उस घर के अंदर, वो बकरियां भी दूध देना शुरू कर देती हैं। हलीमा के जो दरख्त सूख चुके थे जैसे ही मुस्तफा ने कदम रखे हैं उन सूखे दरख्तों पे हरियाली का मौसम आ गया, हरियाली पेड़ों पे छा जाती है। जब ये तमाम तर हालात देखे
उसी जंगल में अपने जानवरों को चराया करो जिस जगह पर हलीमा की बकरियां चरने के लिए जाती है, इसलिए कि हलीमा की बकरियां दूध ज्यादा देती है और हमारी बकरियां दूध कम देती है, इसलिए उसी जंगल का इंतखाब करो जिस जंगल में हलीमा की बकरियां चरा करती है। अब तब हजरत हलीमा सादिया के बच्चों की तरह उनकी बकरियों के बकरियां जिस जगह चरने के लिए गई उसी जगह पर और औरतों ने अपनी बकरियों को चरने के लिए भेज दिया, लेकिन जब वापस आई तब भी हलीमा की बकरियों का दूध ज्यादा था और उनकी बकरियों का दूध कम था। आकर के अर्ज करने लगती है, हलीमा यार ये बात समझ में नहीं आ रही है, हमारी बकरियां भी उसी जंगल में गई थी और तेरी बकरियां भी उसी जंगल में चलती है, लेकिन फर्क बहुत नजर आ रहा है, तेरी बकरियां दूध ज्यादा देती और हमारी बकरियां दूध कम देती। हलीमा सादिया ने कहा ये इनकलाब की वजह कोई और नहीं, ये इनकलाब भी मोहम्मद के कदमों की वजह है, ये इनकलाब भी मोहम्मद की वजह से है। अब जब ये मामूल चलता रहा, एक दिन हलीमा सादिया से पड़ोस की एक औरत ने कहा, हलीमा तुझे मालूम नहीं आखिर ये वही मक्के के हालात है, ये तहत का समाना चल रहा था, यानी गुर्बत का वो आलम था कि एक वो इंसान के यहाँ अगर चराग जलता तो थोड़ी देर लोग चराग जलाकर उजाले में बैठते, बाकी पूरी रात अंधेरा मकानों में पड़ा रहता, लेकिन हलीमा सादिया का घर है जब पूरी रात उजाला ही उजाला रहता है। तो एक पड़ोस की औरत ने कहा, हलीमा ये तो बता इस वक्त में इतना महंगाई के दौर में मेरी गुर्बत का ये आलम है, इस हमारे यहाँ पर एक वक्त में थोड़ी देर के लिए चराग में तेल डालकर चराग जलाते हैं, मगर हलीमा तेरे घर में तो पूरी रात उजाला ही उजाला रहता है, क्या तू कहाँ से तेल लेकर आती है? तेरे यहाँ पर तेल की इतनी फराबादी है, तेरे यहाँ पर इतना सारा तेल कैसे जमा हो गया? तेरे घर में पूरी रात चराग जलता रहता है। तब हलीमा ने कहा नहीं मैं अपने घर में चराग नहीं जलाती, जिस दिन से ये बच्चा आया है इसके चेहरे से जो नूर निकलता है तो पूरी रात रोशन कर देता है। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मुख्तार की आमद, दाता की आमद, जिंदाबाद। क्या बात है मुफ्ती साहब? बहुत अच्छा सा क्या बात है। हलीमा सादिया उनकी तो दुनिया ही बदल गई। वो हलीमा बड़े प्यार से पाल परवरिश करती रही, जब मुद्दत हुजूर के दूध पीने की मुकम्मल हुई लेके पहुंच गई मक्के शरीफ, लेकिन दिल में तड़प वही थी कुछ दिनों के लिए बरकत वाला बच्चा और मिल जाता, कहीं मेरे घर से बरकत चली न जाए। पहुंच गई वापस, जाने के बाद क्या करती हैं हलीमा सादिया, अर्ज करती हैं आमिना खातून यहाँ की आबो हवा बेहतर नहीं है, हालात आबो हवा बेहतर नहीं है, हो सकता है आपके बच्चे के मुवाफिक ये हवा ना हो, इसलिए थोड़े दिन के लिए बच्चा हमें और दे दीजिए। दिल में क्या कसक थी, क्या अगर बच्चा चला गया तो कहीं बरकत खत्म ना हो जाए। अब बहाना क्या बनाया जा रहा है कि यहाँ की आबो हवा बेहतर नहीं, हो सकता है मुवाफिक ना आए, इसलिए बच्चे को थोड़े दिन के लिए और दे दीजिएगा। हलीमा सादिया की ये तमाम तर बातें समझ में आ गई और आने के बाद फिर हुजूर को दे दिया कि लो थोड़े दिन और परवरिश कर लो। अब हलीमा सादिया का बयान था कि मैं जैसे ही मोहम्मद को लेके आई हूँ ना, उस वक्त से लेके आज तक की पोजीशन ये है कि पूरे मक्के और मेरे घर का तो दस्तूर ये था कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दरवाजे पर भी खड़े होते हैं ना, तब उसकी पोजीशन ये जंगल के जानवर मुड़ मुड़ कर मुस्तफा का चेहरा देखा करते हैं। जंगल के जानवर जानते हैं ये कोई और नहीं, अल्लाह का आखिरी हबीब है, अल्लाह का प्यारा महबूब है। बात यहीं पर रोकता हूँ, इसी पीरियड में बढ़ते बढ़ते सरकार की उम्र शरीफ जो है 6 साल की हो गई, अल्लाह का हबीब 6 साल की उम्र में पहुंच गया तो हजरत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का साया मुस्तफा की विलादत से कई महीने पहले हो गया था। अब
रات ये दिल में भी आमिना की कसरत थी। एक दिन सरकार अर्ज करते हैं, माँ ये तो बताइएगा, सारे लोगों के सारे लोग अपने बाप से बाप कहते हैं, हमारे बाप का है कहाँ बेटे, तुम्हारे बाप का तो तुम्हारे विलादत से पहले विशाल हो गया, कहाँ उनकी कब्र का भी कहीं कोई आता पता है? हाँ हाँ है ना, चलो तुम्हें हम उनकी कब्र की जियारत भी करा कर लाएंगे। मुस्तफा जाने रहमत को ननिहाल के बहाने सरकार की चहेती माँ आमिना खातून 6 साल की उम्र में मुस्तफा को लेकर के नानी के घर जा रही है और दिल में इरादा है शौहर की तुरबत की जियारत करना। अब वापसी के मौके पर जब सरकार और आपकी माँ और साथ में सैयदा उम्मे ऐमन है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जब हजरत आमिना वापस आ रही है तो वही मकाम अबवा नाम की एक टीला है, उस पहाड़ी पर पहुंचने के बाद सैयदा आमिना की तबीयत खराब हो गई और जब आमिना की तबीयत खराब हुई ना तो हजरत आमिना खातून उसी पथरीली जमीन पर लेट गए और पथरीली जमीन पर लेट कर सामने 6 साल के नन्हे मोहम्मद खड़े हुए हैं। तो कभी मुस्तफा जाने रहमत को आमिना देखती है और कभी मुस्तफा अपनी माँ को देख रहे हैं। वो मक्के की जर्दी जिसका जो वो मक्के की जमीन पथरीली जमीन और वो मक्के की जर्दी जहाँ पे बिस्तर के बगैर नंगे पैर पे चलना बहुत मुश्किल हुआ करता है और हजरत आमिना खातून उसी पथरीली जमीन पे लेट गए। सरकार फरमाते मेरी माँ के पास बिछाने के लिए कोई बिस्तर नहीं था, मेरे मामा के पास सर के नीचे रखने के लिए कोई तकिया नहीं था। इस्लाम के मुकद्दस दीवानों, आज तुम्हें इस्लाम पलाया मिल गया जिसकी बुनियाद पर तुम्हें इसी चीज का एहसास नहीं। मैं तुम्हें इस्लाम की वो कहानी बता रहा हूँ इस वक्त जिन मुसीबतों के साथ इस्लाम पल पल कर हम तक पहुंचा है, ये वही इस्लाम है। जब मैं मक्का मुकर्रमा में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की, तो मक्का में अबवा में पहुंचाने के बाद माँ की तबीयत बिगड़ जा रही है और जब माँ की तबीयत मेरे आका की बिगड़ी तो सरकार फरमाते मैं अपनी माँ को देख रहा था और मेरी माँ मुझे देख रही थी, तो मेरी माँ ने मुझे देखते देखते अचानक माँ की आंखों में आंसू आ गए। मुसलमानों बच्चों का दस्तूर ये है, अगर माँ रोती है तो नन्हा बच्चा देखता है माँ को रोते हुए तो बच्चा भी माँ के साथ रोना शुरू कर देता है। ये बच्चों की फितरत होती है।